Hello and welcome to our talk show Rubaru. I am Neha Chauhan and today I am here with the School of Music Assistant Professor Kunal Shourie. He is a skilled sound engineer and the specialist in Logix Pro X. He has a wide range of experience in sound design, audio recordings and recording production. First of all, we welcome you, sir. Thank you. Glad to be here. It's such an honor to have you here. Same. So my very first question to you is, how did you get first interested in the sound production and music production? Actually, ये बहुत पहले की बात है. मैं नोएडा शिफ्ट हुआ था 1990 में when I was 6 years old. So it happens to be that my father had the first ever music shop in Noida, which he opened back in 91, 92. So सबको शौक होता है म्यूजिक का. मेरे को कुछ ज़्यादा था, मतलब I got to know that I have an inclination towards music. And I used to go to his shop and उस टाइम पे CDs and cassettes होती थी. And I was round about 8-9 years old when your memory is quite fresh. You remember things back, Right. उस टाइम पे याद हो जाती चीज़ें. So I was all in awe of those posters with bands and with guitar पकड़ा हुआ है हाथ में, and you have drummers and you have pop stars like Christina Aguilera back then, and rock bands like Pink Floyd, Zeppelin. Of course, these guys are like legends. So I used to see them on the wall and I used to ask Papa that, अब ये लोग कौन है, and why don't students like us listen to music like this. हम लोग, क्योंकि उस टाइम पे मूवीज आती थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो बच्चे वही सुन रहे होते थे. और मेरा इंक्लिनेशन टूवर्ड्स वेस्टर्न म्यूजिक ज़्यादा हो गया था. और ये क्यों हुआ, क्योंकि जब मैं उस ड्रॉर पर्टिकुलर केबिन में गया जहाँ पे उनके म्यूजिक पड़ा था, तो डैड ने बोला कि ये वाला मत सुनो, अभी आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी आप दूसरे वाले डेस्क पे चले जाओ, वहाँ पे कमर्शियल बॉलीवुड है, यू लिसन टू दैट. एंड दैट वाज द डिसाइडिंग डे व्हेन आई थॉट दैट no, I want to listen to this. And I actually used to pay that time around 200 or 250 rupees to a bhaiya sitting over there on the counter. My dad doesn't know about it. I used to save my pocket money, and that time pocket money was 50 rupees or something. So I used to save those cassettes and buy those CDs and buy those. A CD back then used to cost you around 800 rupees. So वो ज़्यादा हो गया था मेरे लिए खरीदना. वो धीरे धीरे मैंने CDs भी खरीदनी स्टार्ट करी. But मेरा listening journey music का by that time, by 93, 94 मैंने सुनना start कर दिया था. And slowly my dad also got to know that yes, he has an ear, that he listens to good music. और स्कूल में भी बच्चे बोलते थे, ये कैसेट कहाँ से लाया है, this is so modern, this kind of sound we don't hear that often, because हमारे टाइम पे वॉकमैन होते थे, तो वॉकमैन पे हम लोग सुन रहे होते थे, तो वो कमर्शियल पॉप सुन रहे हैं और मैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक 94 से सुनना स्टार्ट कर दिया था मैंने, एंड रॉक म्यूजिक भी, और रॉक म्यूजिक में जो बैंड्स थे. सो या द लाइकिंग just got it just increased like that since back then. Yeah. Okay, so is there any project that is kind of like very memorable to you that you wanted to share? Memorable, there are many things, but I remember that once I said that I want to follow music when I was doing my schooling, my dad quite helped me in my line, that he said you should follow your passion. My mom did not, because she wanted me to be graduate, and वो तो of course I am, but ये कि पढ़ाई में करना है सब कुछ, engineer बनो, doctor बनो, ये करो वो करो. So my dad was like, you do whatever you feel like, because I want you to succeed, not to do well, succeed and make a profiling for yourself. So I come from a family of journalists. Okay. So they said, one of my uncles said that, बेटा कहाँ म्यूजिक बजाओगे, शादी में बजाओगे कि रेस्टोरेंट में बजाओगे. तो मैंने कहा मैं हर जगह बजाऊंगा, और मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में भी बजाऊंगा. तो मैंने इंडिया का फर्स्ट सनबर्न प्ले किया था 2007-8 में. दैट हैपेंड इन गोवा. That's amazing. And I've been a resident DJ in Delhi's high society hotels and 5-star hotels and 7-star hotels, nightclubs, as a resident DJ. Like, you had Mirage, you had the old timers will know about these clubs called F Bar and Steel. So I was a resident DJ there as well. So डीजिंग मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई. फिर सनबर्न आया. देन आई डिसाइडेड कि कुछ नया करते हैं. तो मैंने कहा डीजिंग के अलावा नया कर क्या, व्हाट कैन आई डू. एंड दैट टाइम आई ओन्ड अराउंड 800 to 900 CDs. I could fill a room with CDs and I used to practice on them. I had value. There was no internet. There was no social media. You couldn't download music, and it was just कि आपको खरीदना था वो CD सिर्फ एक गाने के लिए. So 800 rupees gone for one song. So I had value for that. But then I said that I want to change my stream, because काफी लोग DJs बनने start हो गए थे तब.
And that was the time that I had already started earning since 2003. I was earning. I bought my car out of my own earnings. मेरे डैड मेरे को पॉकेट मनी देते थे, डैड ने गाड़ी ली थी, लेकिन मेरे को बोला था ये तेरी अर्निंग से ही है. So that was a very proud moment because for a Right. 18-year-old to buy a car these days. Hard work बहुत है, listening बहुत करी. I gave a lot of time, but I did also finish my studies. Memorable moment was that I joined AFT. I did a diploma here Oh. in sound recording because being from a upper middle class family, I could not afford very expensive institutes. So ये घर के पास था, तो डैड ने बोला कि why don't you go and try. So संदीप सर से मेरी मुलाकात हुई, डैड की मुलाकात हुई. तो हमारा स्कूल ऑफ म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट्स जो कहते हैं वो सिर्फ 2 कमरों में ही सीमित था उस टाइम पे, एंड मे बी लाइक 4-5 स्टूडेंट्स ओनली. सो आई डिड माई कोर्स हियर. देन आई थॉट ऑफ रनिंग टू बॉम्बे कि ये क्या जगह है, मतलब यहाँ पे क्या ऐसा होता है जो दिल्ली में नहीं होता. सो घर पे बोला कि आई एम लिविंग. हाउ यू गोइंग? आई सेड आई डोंट नो, आई एम जस्ट गोइंग. I booked my train. There's a friend of mine. We both are going. Going with the flow. We're going with the flow. I don't know, 18 hours it took me, 19 hours it took me. We sitting in the train, and I don't know where we got off. And the cab driver, that time metro was not there. ऑटो में बैठा हमने और हम लोग को छोड़ा यहाँ पे एक जगह पे. बट वहाँ पे जाने से हुआ कि हमने बहुत धक्के गए स्टूडियोज में कि स्टूडियो के इक्विपमेंट थी देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है. बट आई वॉज लकी कि उस टाइम पे 2 वर्कशॉप्स कंडक्ट हो रही थी अंडर अ वेरी बिग बैनर, बॉलीवुड बैनर. आई विल नॉट कॉल आउट द नेम, बट I'm sure you must have seen the movie जिसमें इंडियन हॉकी टीम होती है, जीतते हैं. एक बहुत बड़े स्टार हैं उसमें. तो उसमें 2 गाने थे. एक मेन टाइटल ट्रैक था गाना. जिस ईयर इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी T20 का, तो वो गाना शूट हो रहा था उस टाइम पे. तो आई वाज पार्ट ऑफ दोज वर्कशॉप्स इन बॉम्बे एंड I witnessed recordings for 2-3 mainstream films over there. So that was another experience that I kind of felt over there. But then it was turning out to be very expensive because my घर से I didn't want to take much, and my pockets were not that big. So to stay in Bombay and to maintain a lifestyle in Bombay is quite expensive. तो मैं फिर दिल्ली आ गया वापस. So हाँ, उसके बाद भी काफ़ी जर्नीज रही हैं यहाँ पे. I joined metal bands, rock bands. Rock is my first love, and the band was called Punk उड़ान. तो उसमें मैंने प्रोडक्शन करनी स्टार्ट करी. हमने लाइव शोज करे. वी टूर्ड सिंगापुर, मलेशिया, ऑल ओवर इंडिया. मतलब आई वाज basically doing the drums and I was doing the backtracks and with groove boxes. People who are listening to this, they'll be able to relate that I had drum machines like 909 Roland. तो काफ़ी एडवांस सेटअप था हमारा उस टाइम के लिए. 2-3 साल में उस बैंड के साथ हम म्यूजिक वीडियोस बने. हम लोग ने 8 सॉन्ग सिंगल भी रिलीज किया. 8 सॉन्ग्स का पूरा EP रिलीज किया उस टाइम पे. EMI वर्जन पे रिलीज किया. सारे गानों की ओपनिंग्स फुल रही हमारे नाइट क्लब्स के अंदर. That's amazing. Then alongside that I was doing Bollywood music also. If you have seen Shoot Out at Lokhandwala, so the director Sanjay Gupta sir, उनकी एक और क्रॉसओवर फिल्म आई थी द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई. तो उसमें मेरा कॉम्पोज रीमिक्स ट्रैक है जो रिलीज हुआ था उस टाइम 2008-9 ऑनवर्ड्स ही. उसके बाद से तो मैं स्टूडियोज में ही लग गया. तो आई वाज लाइक more of a indoor person more than less of a outdoor. I had done not too much of outdoor. अभी भी मैं outdoor करता हूँ, but it's only festivals that I play. Like Magnetic Fields is there. That's one of the best electronic dance music festival of our country, which happens in Alsisar, Rajasthan once a year. So I have specialized festivals that I play in, and I play deep house and electronic music there. ये सब कुछ सही चल रहा था in that period only that I got married and was doing studio works only, and I was working in grade A studios in Delhi and NCR. 4-5 साल के बाद कोविड आ गया. So that was a scare because हमारी इंडस्ट्री को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया कि म्यूजिक एंड परफॉर्मेंसेस तो मतलब किसी ने सोचा ही नहीं कि किसी का घर भी चलता है इससे. सो ऑनलाइन मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था 2013-14 में. आई स्टार्टेड जॉइनिंग इंस्टीट्यूट्स वेयर स्टूडियोज वर देयर. तो शाम को स्टूडियो का काम होता था एंड दोपहर के अंदर वी हैड टीचिंग सेटअप्स. सो इफ यू काउंट 2025, so I have 13-14 years of teaching experience also. So yeah, so 20 में मैंने Zoom क्लास लेनी स्टार्ट करी and I had put a resume here in AFT. So one day I got a call from our dean, Dr. Parth Sinha, and
I'm very respectful to him for accepting it, and मैं उनका थोड़ा पीछे भी पड़ा था, क्योंकि 2-3 हफ्ते तक मेरे को रिप्लाई नहीं आया, तो मेरे को टेंशन हो गई थी। मैंने कहा क्योंकि आई वाज मैरिड एंड आई एम स्टिल मैरिड एंड रनिंग अ फैमिली, तो एक होता है कि एक सर्टेन सैलरी से आप ड्रॉप हो जाते हो, Your responsibilities also. responsibility is there. So I was like, sir, is it on or is it off? Just tell me that. Sir, he said कि sir यहाँ पे exam चल रहे हैं, after that you can come and meet me for the interview. So I came here in like 2020 and I gave my interview, and since then I'm here in this beautiful institution, and I'm very thankful to this institution that has provided me with this platform, and I'm able to deliver since then. Hopefully, yes. That's right. So, and if we talk about technology, so being a music producer, you have Right. to bring your creativity. Right. And today's we are focusing more on the AI, right? People are generating music, they are generating a lot of type of instrumental using, just putting that prompt and just getting that music. So, do you think we are losing the creativity? Day in day out, I think I'm answering this question that uh, the net, देखो लोगों को थोड़ा सा तो फील होना चाहिए कि it's doing something, but we as humans, we put in expressions and we put in feelings which I think a computer is unable to do. Maybe a musician will understand that I want to change my progression or my feel at a certain point of time in a track, or maybe there are thousands of things what a human can do, maybe a computer cannot do musically. Right. Maybe I want this sound to come from here, then this sound to come from here, and pan them in such a way. There's so many things that I can talk about. What it is kind of impossible for the AI to do it. I'm not saying that it's not capable. It might be capable in some times to come, but we are upgrading as well. Engineers ही चाहिए AI को वो चीज चलाने के लिए, तो साउंड इंजीनियरिंग और टेक्निकल नॉलेज तो तभी भी चाहिए होगी. Right. कोई लेमैन तो उठा के नहीं चले जाएगा. तो यही है कि मतलब बेटर ही होगा आपका काम. If you use AI in a positive way, your work will become better rather than just आप अकेले ही brainstorming कर रहे हो. It helps you. So आप 20% उसका help लीजिए, 80% आप अपना input भी डालिए उस चीज के अंदर. So that's what I have to say about it. Okay. But there are many techniques that a human does, which Right. A computer can't. yes, of course, we made the computers. Right. Yes. So, and as we talk about being an educator, being a sound producer, Right. music producer, how do you balance all those roles? How do you balance? Yes. बैलेंस तो पहले ये हुआ कि जो पहले मैं बैचेस पढ़ा रहा था कहीं पे, तो वहाँ पे 8-10 बच्चों का बैच होता था. अब यहाँ बच्चे आ रहे हैं 50, 4-year course, 2-year course, masters, ये वो. So I think it is challenging, but then it also gives me an high. It also gives me that kick to get up in the morning and to show my students that what are the possibilities in this line, not to be the stereocast की stereotype की हाँ म्यूजिक प्रोडक्शन ने तो गाना बनाया छोड़ दिया. आज की डेट में इतने avenues हैं कि every day there's a ad coming out. For example, a mic, a camera, light, a book, this table. Every day there's a model, a thing being launched. उसके लिए ads चाहिए. हम ट्रैक बनाते हैं, वो 3.5 मिनट का गाना होता है, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आते हैं, उसके अंदर परफॉर्मर्स आते हैं, गाने में पैसा अच्छा खासा जाता है. आप रिकवर कैसे करोगे अगर वो फ्लॉप हो गया तो? But there are certain streams in this line what I tell my students to follow, like mixing audio, like making jingles, making ads. अब ad कितनी देर का होता है? 30 सेकंड, 40 सेकंड. आपको 40 सेकंड में पूरा झोंक देना है अपना म्यूजिक जितना भी आपको आता है. But it is a continuous thing. Every day so if you are in touch with the production house or with the ad agency, they'll keep on giving you work. Right. चाहे स्टार्टिंग में स्टूडेंट को कम मिल रहा हो लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टर्न्स आउट टू बी द सेम. चाहे आपकी जिंगल मेकिंग है, पेप्सी का ऐड है, या कोई ऐसा कोई ब्रांड है जिसका ऐड, कोई नया ऐसा किसी ने एनर्जी ड्रिंक निकाला, उसको आपका काम पसंद आ गया, कल को वो भी स्प्रेड द वर्ड एंड ही नोज दैट ही इज अ गुड जिंगल मेकर. सो इट्स नॉट ओनली म्यूजिक प्रोडक्शन, इट्स डिजाइनिंग, इट्स लाइक recording. Now some of my students, they are into game design. They do sounds for games. तो उसको सिखाया मैंने बहुत कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है. तो उसकी जॉब लग गई किसी ऐसा कोई कार्ड गेम में लग गया. कहता सर मैं कार्ड गेम में थोड़ा म्यूजिक करने आया था. मैंने कहा तू रुके रहे अभी, जस्ट कीप just build your profile, work there for a year, make your profiling strong. So he worked there, वो करते रहा, उसको अपग्रेड हो गया, वो किसी स्लॉट मशीन में चला गया. तो धीरे 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 करके करते करते
एक नॉर्मल पैकेज से उसको अच्छा पैकेज मिलने लग गया, एंड टुडेज डेट ही इज द हेड साउंड इंजीनियर फॉर EA Sports Wow. Bangalore. So he's doing games like, you know, Ashes series and Formula One circuits and FIFA, and I'm so happy. Students of mine are doing very well in Bombay, where they are mixing music in Dolby setups in Saregama and in, you know, labels like that. So अगर चाह है करने की, I can teach you the route. It is you who has to do the hard work. Right. You know, you can get the horse to the pond, but you can't make it drink. तो I can give all the technical knowledge what I love to do. क्लास में मैं सिखाता हूँ सब चीज़ें, इसको जो ग्रास्प करना है वो करता है, जो नहीं करता उसको मैं डबल क्लास देता हूँ उसके बाद, बिकॉज दैट इज माई थिंग ना, कि एक बच्चा पीछे ना रह जाए, हाँ. क्योंकि वो सहम जाएगा कि अच्छे बच्चे तो अच्छा कर ही लेंगे, जो नहीं कर पा रहा अच्छा तो उसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए. Right. So that is my thing since around 4-5 years now. This is what I've been doing, multiple batches and multiple courses. Yeah. That's great. और जैसे ये ट्रैक की बात कर रहे थे, हाँ अगर जी. कोई न्यू ट्रैक बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, you need you know that observation and a lot of things. So how do you inspire yourself or motivate yourself to start do a new track or produce a new track? It's all calculations in your brain, and that along with calculations with your heart, when they meet, it has to come over time. It takes time. It takes, for someone it takes a year, for someone it takes 10 years, someone it takes 20 years. For me, I do lucid dreaming also sometimes. So उसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे को सुबह कोई ट्रैक बनाना है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को ट्रैक का अरेंजमेंट मैं उसको सोते सोते कर लेता हूँ कि मेरे को इसमें ये करना है, मेरे को ये इंट्रो ये करना है. इट्स हाउ यू dwell yourself in that particular field. That's a special power. So मतलब ये करना है कि मतलब आप सोच रहे हो कि आप सुबह 9 बजे आ रहे हो, 8 बजे आ रहे हो, 9 बजे आपका पहला सेशन है, 50 बच्चे आपको देख रहे हैं, और आपको फ्रेश रोज कुछ बनाना है, और आपको दिन में एक बार नहीं बनाना, आपको दिन भर में 5 बार ही बनाना है, बिकॉज 5 या 4 5 आप दिन में पढ़ाते हो. तो बच्चा ये बोले कि अरे ये क्या हो गया, ये ना बोले क्या हो रहा है यार, ये फर्क है दोनों में, दोनों सेम लाइंस हैं लेकिन एक्सप्रेशन फर्क है. सो वी नीड टू बी अलर्ट. ऑफ कोर्स दिस टेक्स प्रैक्टिस, years and years of practice, बट ये कि सुनने से आती हैं ये चीज़ें. आई हैव हर्ड सो मच ऑफ म्यूजिक इन माय हेड कि उसको जो मैं मतलब बच्चों को सुनाने पे भी आऊँगा तो शायद उनके भी बाल ग्रे होना स्टार्ट हो जाएंगे, इतना म्यूजिक है मार्केट के अंदर. सो वही म्यूजिक जो आपने पहले सुना है वही आपको हेल्प करता है आगे एक्सप्रेशंस या नई चीज़ें बनाने के लिए. अगर किसी ने कुछ सुना ही नहीं है तो वो तो अपने ही थोड़ा उसमें रह जाएगा, राइट, चद्दर में रह जाएगा जितना उसके पाँव जा रहे हैं. सो दिस इज हाउ यू नीड टू लिसन. सुनना पड़ता है. हाँ जी. और जो स्टूडेंट अभी AFT में आना चाहते हैं फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिक स्कूल में फाइनेंस में अपने म्यूजिक सीखने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, सो व्हाट अपॉर्चुनिटीज दे विल गेट हियर एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्सपोजर दे विल गेट हियर? This question right now is absolutely valid because there's a lot of competition in the market, but then again कंपटीशन के साथ कंपनीज भी खुलती हैं, नई कंपनीज रोज लॉन्च होती हैं, उनको रोज स्पेशलिस्ट चाहिए. आपके पास सोशल मीडिया है, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, हमको जगहों पे जाना पड़ता था, और कई बार 10-10 दिन लगते थे वहाँ के मैनेजर से मिलने के लिए, ओनर से भी नहीं. तो ओनर के उसी के पास तक आपके रेज्यूमे पड़ा है, वो अंदर कब जाएगा आपको नहीं पता, मेन ऑफिस में. आज की डेट में यू पुट आउट योर ट्रैक, इट्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, इट्स ऑन स्पॉटिफाई. एक सेकंड में किसी को अपना लिंक भेज सकता हूँ. पहले मेरे को सीडी लेके जानी पड़ती थी. सो जितना कंपटीशन बढ़ रहा है उतना तो सोशल मीडिया भी तो बढ़ रहा है. सो वी हैव सो मेनी वेज टू यू नो प्रमोट योर ट्रैक एंड गेट दीज जॉब्स. एवरी डे there's a game launched, every day there's an ad launched, every day there's a jingle launched, every day there's a music label coming up that is looking for good fresh talent. You know, उनको गोस्ट प्रोड्यूसर्स कहते हैं. वो ट्रैक कोई नामी आर्टिस्ट का होगा लेकिन प्रोडक्शन पीछे किसी लड़के ने करी होगी, उसको कैश मिल गया होगा, उसने गाना बेच दिया आगे. ये काम भी होता है. सो देयर आर सो मेनी फील्ड्स, रिकॉर्डिंग इंजीनियर, मिक्स इंजीनियर, मास्टरिंग इंजीनियर, साउंड डिज़ाइनर, गेम साउंड डिज़ाइनर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, यू नो, ये स्पेशलाइज फील्ड्स हैं. तो आज की डेट में जब हमारे ज़माने में बोलते थे कि हमने अपने दादियों से सुना है ये सब चीज़ें कि डोंट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बी अ मास्टर ऑफ नन. आज की डेट में आपको सब आना चाहिए और स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए कि आपको म्यूजिक थ्योरी भी आए, आपको रिकॉर्डिंग करना भी आए, एक माइक से. सो टुडेज डेट आई मेक अ स्टूडेंट रेडी दैट ही विल बी ऑन फॉर ऑल द चैलेंजेस. कि अगर उसको कोई ऐड देता है वो ऐड बना पाए, उसको कोई म्यूजिक प्रोडक्शन का गाना देता है
कोई इसको रैप ट्रैक देता है जो बहुत कुछ इन है आजकल रैप, अब कितने टाइम तो सस्टेन करेगा, क्योंकि जो वेस्ट में मर जाती थी वो यहाँ पे आ जाती है, हम्म उसका क्रेज आ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो मर गई वहाँ पे, बट ये है कि वो हो चुका है एंड पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स म्यूजिक दैट इज ऑलरेडी बीन डन, हम्म यू नो। सो व्हाई डोंट यू पिक अप जॉनर्स, लाइक यू नो, हम इतना इतना ज्यादा हम रिच हैं अपने हिंदुस्तानी क्लासिकल के अंदर कि अगर मैं बाहर के फेस्टिवल्स देखता हूँ, ये तो बहुत कमर्शियल हो गया टुमारोलैंड, हम्म और ये देयर आर सो मेनी म्यूजिक फेस्टिवल्स, प्राग म्यूजिक फेस्टिवल, शाम्बाला। अब उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक होता है लेकिन बेस आपके अपनी कंट्री का होता है, हम्म राग बेस्ड होता है, उसके अंदर सी मेजर सी माइनर नहीं होता, उसके अंदर राग बेस्ड होता है। एंड फॉरेनर्स वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में आके एक शिवा, एक काली और एक ओम को देख के थोड़ा सा ना हो जाते हैं उनको कि हम्म ओ वाओ दिस इज लाइक डिवाइन पावर। हम्म तो वो चीज को हम अगर म्यूजिक में मिक्स करके वी प्रेजेंटेड इन सच अ वे, वी कैन रियली just cross boundaries, we can we we can can also we can create, do shows, we can right. travel abroad। आप 25 दिन तो ट्रैवल कर रहे होगे, आपको यहाँ परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, हम्म आप ट्रैवल ही कर रहे होगे, आप अपने ईपीस बना रहे होगे और सिर्फ ट्रैवलिंग कर रहे होगे। So these are the things that are there in the market now. And as for the student who wanted to invest in a good equipment or maybe for a good software, so as a producer, as a music producer, as a scholar, as an educator, Hmm. what are your tips and advice for them? See, firstly, जो आपने सॉफ्टवेयर की बात करी उसको हम लोग डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन कहते हैं। Hmm. वो चीज़ बहुत बात की चीज़ है, जब आपके दिमाग में पैटर्न्स बनना स्टार्ट हो जाए, आपको चीज़ समझने स्टार्ट हो जाए, आपको म्यूजिक समझना स्टार्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक का एग्जांपल देता हूँ, तो उसके अंदर 100 जॉनर से ज़्यादा है। Hmm. ठीक है, तो लोग ईडीएम को एक ही मानते हैं, बट ईडीएम में 100 टाइप्स ऑफ जॉनर्स है। तो Right. आपको पहले तो, जो मैंने पहले ही बोला, कि आपकी लिस्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको हिप हॉप, आरएनबी, रैप और ये सब का पहले हिस्ट्री सुनना है। यू हैव टू लिसन टू various styles of music, various artists, First, this is your homework. Hmm. First of all, don't invest in, कि पैसा है तो खरीद लिया, वो पड़े रह जाएगा, उस पे कपड़े सूखेंगे, वो खराब हो जाएगा पड़े पड़े, उस पर स्पाइडर वेब्स आ जाएंगे। आप मेरे साथ बैठो, हमारे लैब्स हैं, आप वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, आप मेरे साथ आइए, अपने अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। टिल द टाइम आई डोंट से कि नाउ ओके, फॉर एग्जाम्पल राहुल राहुल अब तो खरीद सकता है, Hmm. यू आर रेडी नाउ, यू आर मेकिंग गुड म्यूजिक, you have nice ideas, now I am sure that you will not waste your father's money, now you can invest। आते मैं नहीं बोलूंगा किसी को यार तू you go in for this 15,000 rupee headphone, this 35,000 rupee Hmm. interface and 70,000 rupees for DAW, 20,000 Mac लेना है, पीसी लेना है, सर मॉनिटर कौन सा ले, पहले म्यूजिक तो जान जा, संगीत तो जान ले, या पूरी जिंदगी चलेगी। अभी राइट नाउ आई एम टर्निंग, मतलब जिंदगी नहीं चली है, टचवुड, कि आई एम टचिंग 41 42 नाउ, सो Hmm. आई बीन डूइंग म्यूजिक सिंस आई वाज 14। धीरे धीरे और समझ में आ रहा है म्यूजिक, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कोई कोई आ जाए तो सब चीज़ जान जाए वो चीज़। सो इट Right. टेक्स टाइम। सो इट इज़ योर फैकल्टी, इट इज़ योर प्रोफेसर, इट इज़ योर टीचर हु टेल्स यू व्हेन वेयर टू डू थिंग्स। प्रोफेसर का काम ही वही है, Hmm. गाइड करना। नहीं तो अगर आप यूट्यूब की वीडियो से जाओगे और यहाँ से जाओगे तो आप लुट जाओगे, मतलब आप सब कुछ खरीद लोगे, फिर बैठोगे ना, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। यहाँ पे ऐसा एटमोसफेयर है कि सिंगर्स भी हैं आपके पास, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, वेस्टर्न इंडियन बोथ, एंड प्रोड्यूसर्स हैं। Hmm. सो आप लोग पूरा अपना क्लैन बना के, आप ग्रुपिज्म करके, आप अपनी कम्युनिटी बना के, कोलैबोरेशंस करके, यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ। एंड देन आई विल से ओके नाउ राहुल, Hmm. अब सामान खरीद ले यार, अब तेरे Hmm. को जरूरत है, अब तू, मेरे पास इतना टाइम नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे को भी और काम है। Right. तो जब तक उसको आया नहीं तब तक मैं उसको बोलूंगा नहीं कुछ खरीदने को। मतलब बेसिक एक लैपटॉप तो आई थिंक एवरीबडी Hmm. हैज एट होम, उसके अंदर एक बेसिक आप DAW डाल के नॉर्मल कंज्यूमर ग्रेड हेडफोन्स पे आप पहले म्यूजिक बनाना। एंड कीबोर्ड्स भी ज़्यादा महंगे नहीं आते, जो प्लेएबल कीबोर्ड्स होते हैं 7-8 thousand या मे बी 5-6 thousand में नॉर्मल मिडी कंट्रोलर आ जाता है। Hmm. तो इतना ज़्यादा कुछ करने की स्टार्टिंग में ज़रूरत है नहीं। लोग शो ऑफ करने के लिए सर ये ले लिया ये ले लिया, मैंने कहा म्यूजिक कहाँ से लाएगा, ये तो है, Right. The main element. कहाँ है म्यूजिक, कहाँ है, नहीं सर वो, हाँ वो ये ऐसे बीट उठाई थी, ये करा था सर, यूट्यूब की बीट है ये। मैंने कहा तेरा कहाँ है, वेयर इज Hmm. योर साउंड, वेयर इज राहुल साउंड। फॉर एग्जाम्पल वी लिसन टू म्यूजिक एंड we listen to Salim Suleiman sir, or Hmm. we listen to Rahman sir, or we listen to Ajay Atul sir। गाना चलते ही हमको पता चल जाता है कि ये टोन किसकी है। Hmm. एक आर्टिस्ट के लिए वो जिस दिन हासिल कर लिया ना, अ पर्सन शुड वर्क ऑन हिज टोन, Hmm. कि ये ट्रैक प्ले हुआ तो दूसरे ने बोला कि यार ये राहुल का हो सकता है गाना,
मैं बार-बार राहुल बोला कॉमन नाम Hmm. है ना? तो ये इसका हो सकता है बिकॉज आई हर्ड हिज प्रीवियस एल्बम्स ये साउंड्स ये यूज करता है सो वेयर आर यू Hmm. यू नो वेयर इज यू इन दैट म्यूजिक आप तो वही सेम टेम्पलेट यूज कर रहे हो यू नो यू मेकिंग द सेम बीट आप वही सी मेजर सी माइनर स्केल्स में कर रहे हो वेयर इज यू इन दैट सो दिस इज व्हाट आई टेल स्टूडेंट टू वर्क ऑन देयर साउंड्स फर्स्ट कि कीप वर्किंग इट टेक्स टाइम Hmm. ये ओवरनाइट नहीं आएगा Right. कि इसको ऐसे डिजाइन करेंगे तो सर इसमें से ऐसे आवाज आएगी और इसको ऐसे यूज कर सकते हैं इस गाने Hmm. के अंदर वो मेरा होगा कॉपीराइट आपका है फिर उसका Hmm. so that's what I try to instill in my students. Okay. At last, any message, like what message you would give to the students who wanted to join as a music production, but they are kind of like scared because of society pressure, because of family pressure, whether they choose this career or not? Family pressure and society pressure is something which is sustaining since a long time. तो उसको तो बैरियर को थोड़ा सा आपको अवॉइड ऐसे करना पड़ेगा कि आपको थोड़े से तो आपकी अर्निंग थोड़ी Hmm. सी साइड बाय साइड आप if you see certain type of foreigners they are selling young boys are selling burgers in McDonald's they're earning with their living and then they are pursuing their dream Hmm. तो अगर आप सिर्फ घर से ले जा रहे हो पैसा ले जा रहे हो ले जा रहे हो ले जा रहे हो ले जा रहे हो तो ऑफ कोर्स एक पेरेंट का भी एक क्रम्बलिंग पॉइंट आ जाता है कि यार मेरे को कब मिलेगा घर पे कब आएगा पैसा बिकॉज यू नीड टू बी द मैन ऑफ द हाउस आफ्टर ऑल बी इट अ गर्ल बी इट अ बॉय Hmm. कि अगर फादर हैं तो वो बोले कि हाँ ये है ना संभाल लेंगे तो सबसे पहले कि यू नीड टू शो डेडिकेशन नॉलेज अगर थ्योरी भी चल रही है तो कान से खोल के सुनना है क्या बोल रहा हूँ स्किल डेवलपमेंट Hmm. जो मैं बोल रहा हूँ उसको 2 दिन में करके दिखाना है और फिर लास्ट में डिलीवरेंस की सीख लिया करना आता है लेकिन आप डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हो उस प्रोडक्ट को तो इट्स वेस्ट Right. if a company comes to me the company says okay Kunal makes excellent music electronic music and he is very knowledgeable इसको गाना देते हैं और इसको बोलते हैं 2 दिन में डिलीवर करना है Hmm. और 2 दिन के बाद मैं बहाने मारने स्टार्ट करता हूँ सर अभी थोड़ा सा ना ये एक्चुअली सर वो हो गया था ये हो गया था ये हो गया था वो आपसे थोड़ा सा एम्पथाइज करेगा ओह सो सॉरी लेकिन वही गाना नेक्स्ट टाइम उसी दिन किसी और को चला जाएगा Hmm. सो स्टूडेंट्स हैव टू बी एवरी टाइम ऑन अलर्ट कि अगर घर का पैसा लग रहा है तो एक तो सबसे पहले अटेंडेंस Right. सबसे पहले रोज आना है अगर टीचर परफॉर्म नहीं कर पा रहे प्रेशर डालो अगर स्टूडेंट नहीं परफॉर्म कर रहा तो टीचर को प्रेशर डालना चाहिए अगर दूसरा स्टूडेंट नहीं परफॉर्म कर रहा तो एक स्टूडेंट को उस स्टूडेंट पे प्रेशर डालना चाहिए कि क्लास का फ्लो मत बर्बाद कर 10 बजे आने 9 बजे आने तो 9 बजे आ 9:15 वो चीज़ रिपीट होगी सो एक फ्लो होता है म्यूजिक में भी अगर मैं रुक जाता हूँ तो वो फ्लो टूटता है Hmm. अटेंडेंस इज सुपर इम्पोर्टेंट आफ्टर दैट talking to your teacher, clearing your doubts, asking about the previous topic, confirming, ये नहीं कि यार YouTube पे इसने ये बोला तो मैं सर से क्वेश्चन करके पूछता हूँ ये सेम Hmm. चीज वो तो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई डोंट क्रॉस क्वेश्चन योर टीचर्स यू कैन आस्क देम यू कैन क्लियर योर डाउट्स क्रॉस क्वेश्चन करो हेल्दी वाली करो ऐसी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स की वो दिख जाता है कि ये शायद कुछ टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज गुड फॉर अ टीचर आई वोंट से दैट इज बैड फॉर अ टीचर Hmm. बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड टुगेदर enjoy your practice time ये नहीं कि आप कैंटीन में बैठे हो आप पीछे रोड पे हो या आगे रोड पे हो आप मोबाइल फोन पे हो प्रैक्टिस टाइम मिला है तो आप वो मैक पे बैठो ना आप विंडोज पे बैठो आप अपने डॉ पे काम करो अपने हाथ चलाओ कीबोर्ड पे या गिटार सीख रहे हो प्रोडक्शन करो एवरी डे योर टीचर शुड सी योर इम्प्रूवमेंट जब इम्प्रूवमेंट दिखेगी टीचर आपको प्रमोट करने की कोशिश करेगा चाहे वो बंच में हो